راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے میل جول والے لوگوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث بن رہے ہوں گے۔ اور واقعی سامعین، کچھ لوگ اس قدر اچھے ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ، ان کا مزاج ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے اور ہمیں ان کا رویہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اسی طرح سے میری ملاقات ہوئی ایک یونیورسٹی کی ڈین سے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی اور اس قدر سادہ لو اور مزاج اس قدر اچھا کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ خود سے جونیئر ٹیچر سے تو عزت سے ملتی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو بھی اتنی عزت سے مخاطب کرتی تھی کہ واقعی طالب علموں کو احساس ہوتا تھا کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ ملازموں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا اور انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور دل چاہا کہ اونچے عہدے پر فائز انسان ہو تو اس کا رویہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور واقعی اس رویے سے متاثر ہو کر پھر لوگ دل سے عزت بھی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، کوئی غلطی بھی ہو جائے تو آ کر بیان کرتے ہیں اور پھر وہ ادارے کی، دفتر کی، معاشرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں آج کی بابرکت تلاوت۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ سامعین، آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ رویہ رکھیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا ہے۔ محبت اور عزت چاہیے تو دوسروں کو بھی محبت اور عزت دینی ہے۔ اور ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، شاہی عظیم ہے، معبودوں میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ نہ صرف اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے بلکہ ہم گناہ گاروں سے بھی بے حد پیار کرتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، اور اس کی اسی عظمت کی وجہ سے کائنات کی ہر ایک چیز اس کی حمد کرتی ہے۔ تو آئیے ابھی ہم بھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں۔ کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ رنگ بجا کے دستارا ایک ساز بنا کے بین بربت خوش رنگ بجا کے کرے یاد سب بات کرنا شکر خدا میرے رب
सुना हमने आज का हमदिया गीत और अभी आप सभी सामईन प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप हमसे राबता कर सकें। हमें फोन कॉल और SMS कीजिएगा। इसके लिए नंबर है 03053377 आप हमें खत लिख भेजिएगा। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद, पाकिस्तान। यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज और फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद। तो सामईन, हम मुंतजिर हैं आपकी जानिब से राबते के, खतूत और SMS के और खूबसूरत से तबसरों के, और आपके भेजे हुए SMS को हमेशा की तरह हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अभी भी आप में से बहुत से साथियों की जानिब से हमें मैसेजेस मौसूल हुए हैं, तो चलिए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है इरशादुल असर जाफरी साहब का। कहते हैं कि आदिल मुश्ताक साहब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत ही पसंद आया। इनका अंदाज बहुत ही दिलकश लगता है और आप राह जिंदगी की सारी टीम के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया इरशादुल असर जाफरी साहब, मेजबान को सराहने के लिए और प्रोग्राम राह जिंदगी की पसंदीदगी के लिए। असद मुराद साहब लिखते हैं गांव कोशक, तहसील बलीदा, जिला केच से। कहते हैं कि जोशुआ जी की उम्दा मेजबानी में प्रोग्राम सुना, कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत, खतूत और SMS का सिलसिला आपको अच्छा लगा और खुसूसी तौर पर आप कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे में पहाड़ों के मुतालिक जो मालूमात मिली वो बहुत ही मुफीद थी और मैंने ये जाना कि पहाड़ जमीन की कील है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका असद मुराद साहब प्रोग्राम को सुनने के लिए और हमें मैसेज लिखने के लिए। वफा अली बरोही साहब कहते हैं कि राह जिंदगी प्रोग्राम बड़ी ही बाकायदगी से सुनता हूँ, हौसला मिलता है, खुशी मिलती है और तफरी फराहम होती है। कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे में बहुत ही जबरदस्त मालूमात मिलती है और दीगर प्रोग्रामों में आप कहते हैं कि आदिल मुश्ताक की मेजबानी बहुत लाजवाब होती है। वफा अली बरोही साहब, आपके इस मैसेज के लिए, प्रोग्राम राह जिंदगी से मोहब्बत के इजहार के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हम चाहते हैं कि मोहब्बतों के इस सिलसिले को आप इसी तरह से जारी रखें। जिला ननकाना साहिब से मैसेज भेजा है राय वलायत खरल साकी साहिब ने। मैसेज भेजा है इन्होंने पंजाबी में और कहते हैं कि राह जिंदगी दी सारी टीम नू बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम सुनिया बहुत ही चंगा ते वधिया लगा। सारे ही मेजबान एक तो वध के एक हैं और बड़िया ही वधिया ते सोहणियां गल्लां करदे हैं। हर सिलसिला ही बेमिसाल है और गाणियां दा इंतखाब भी बहुत चंगा हुंदा है। सारे सजना ते बेलियां दे मैसेजेस भी बहुत चंगे लगदे हैं। राय वलायत खरल साकी साहब, आपकी इस खूबसूरत से मैसेज के लिए और मोहब्बत का इजहार पंजाबी में करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि इसी तरह से आप प्रोग्राम राह जिंदगी से जुड़े रहें। अभी मेरे पास जो मैसेज है वो मौसूल हुआ है बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब की जानिब से। इसे लिखने वाले हैं अली रजा साहब। कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, जोशुआ जी की मेजबानी में जो इन्होंने दुनिया में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बताया बहुत ही अच्छा लगा। दीगर तमाम तर सिलसिले भी बहुत पसंद आए और प्रोग्राम में एक खूबसूरत गीत सुनने को मिला, सानू यार मनावनाए। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। दीगर तमाम तर सिलसिले भी आपको बहुत पसंद आए। अली रजा साहिब, आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और प्रोग्राम राह जिंदगी में मैसेजेस भेजते रहें। आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। सामईन, आगाज में हमारी बातचीत हो रही थी कि अगर कोई शख्स ऊंचे ओहदे पर फाइज है, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आ रहा है, तो ऐसा शख्स दूसरों के लिए मिसाली शख्स है। और एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो अपने मुलाजमों से बड़ी ही बदतमीजी के साथ पेश आता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मैंने नरमी बरती तो ये लोग मेरा रौब नहीं मानेंगे, मेरे डर में नहीं रहेंगे। तो वैसे तो वो ऊंचे ओहदे पर फाइज है, लेकिन उसकी शख्सियत को देखा जाए तो वो गिरावट का शिकार है और उसकी वजह से दूसरों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। तो सामईन, अगर हम किसी भी ओहदे पर हों और हमारी वजह से दूसरे लोग पुरसुकून महसूस करें, उनकी जिंदगी में खुशी हो, इत्मीनान हो, तो ये तो क्या ही अजीम बात हो। तो आइए सामईन, अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ड्रामा चिरागेरा, जिसमें आज हम हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से सुनेंगे किस्त नंबर 10। आइए इस बाबरकत से सिलसिले को मिलकर सुनते हैं और इससे फैज़याब होते हैं। जिंदा खुदा ने फिरौन पर बड़ा अजाब नाजिल किया और मूसा की कौम को फिरौन के जुल्म से आजाद किया। अब इब्रानी कौम बियाबान में सफर कर रही है। लोग पानी और खुराक की कमी की वजह से मूसा और खुदा पर
बुड़बुड़ाने लगे हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें कहा कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सेव होगे। अलिशबा, अलिशबा, ये शोर कैसा है? शोर? मरियम, कौन सा शोर? अलिशबा, ये शोर भाई, जरा सुनो तो सही। परिंदों के उड़ने की आवाज है। अलिशबा, देखो देखो, ये तो बटेरों की डारें हैं। उफ, इतनी ज्यादा बटेरें। और मरियम देखो तो, वो तो हमारे खेमों के पास ही बैठती जा रही हैं। और देखो मरियम, लोग उन्हें पकड़ भी रहे हैं। लड़कों, ए लड़कों। अम्मी, क्या बात है? हम यहाँ हैं। भागो, दौड़ो, पकड़ो इन बटेरों को, आज ही पकाएंगे इन्हें। अच्छा अम्मी जान, अभी पकड़ कर लाता हूँ। रात को तो खाना बहुत ही मजेदार था। भुनी हुई बटेरों ने तो वो मजा दिया कि मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। हाँ अम्मी जान, मेरा तो दिल करता है कि मैं हर रोज बटेरे ही खाऊं। आप लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने बटेरें भेजी। मैंने तो उन्हें सिर्फ पकाया ही था। भाभी, भाभी, भाई सब देखो, ये क्या अजीब चीज है। बाहर तो जमीन पर हर तरफ यही बिखरी पड़ी है। फुप्पा, क्या है? ये तो कोई गोल गोल सी सफेद रंग की चीज है। छोटा सा बीज लगता है। क्या है? ये है क्या? भाई मूसा, क्या कोई खाने की चीज है ये? ये वो रोटी है जो खुदा ने हमें अता की है। रोटी? ये रोटी है? मैंने तो कभी ऐसी रोटी नहीं देखी। हाँ, ये वो रोटी है जिसका खुदावंद ने वादा किया था। सबसे कह दो कि वो अपने अपने खानदान के मुताबिक इसे जमा कर लें। और सुनो, सुबह तक कोई इसमें से कुछ रख ना छोड़े। जाओ जाओ, जल्दी सबको बताओ। अलिशबा, क्या ख्याल है? इसे खाएंगे कैसे? क्या ऐसे ही खा लेंगे? बहन मरियम, कुछ कह नहीं सकती। ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे ही खाकर देखते हैं और कुछ उबाल लेते हैं। हाँ ठीक है। अरे भाई गोरा, कैसे मिजाज है? नई रोटी यानी मन, उससे तो खूब मजे उड़ा रहे हो ना? बस ठीक ही है, मुझे तो वही मामूली रोटी ही पसंद है दातन भाई। ये कदरे खुश्क है भाई। असल मसला तो पानी का है। पानी के बगैर इस रोटी, इस मन का क्या फायदा? ठीक कहते हो भाई, चौपायों को भी तो बहुत जरूरत है पानी की। दातन भाई, मैं तो मूसा से मिलने जा रहा हूँ। भाई अगर वो अपने आप को लोगों का रहनुमा समझता है तो उनकी जरूरियात भी तो पूरी करे। गोरा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उसे कुछ और भी तो सोचना चाहिए। हमें खामखा इस बियाबान में प्यासा मरने के लिए ले आया। भाई मूसा, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। हालात मुश्किल दिखाई देते हैं। लोग इतना ज्यादा बुड़बुड़ा रहे हैं कि बस खुदा ही आपकी मदद करे। हाँ हारून, जरा सी मुश्किल होती है तो लोग बातें बनाने लगते हैं। बस ईमान की कमी है। देखो ना, खुदा इनके लिए इतना कुछ करता है मगर ये नाशुक्रे हैं। पता नहीं क्या बनेगा इस कौम का। हाँ, बात तो ठीक है, मगर दातन और पूरा के जाने के बाद खुदावंद ने आपसे क्या फरमाया है? अरे हारून, देखो ना, दातन और कोरा ही तो हर बात को हवा देते हैं और मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन खुदा हर इंसान से वाकिफ है, दिलों को जानता है। हाँ, खुदा की तारीफ हो। हारून, उसने पानी मुहैया करने का वादा किया है। अच्छा, खुदा ने पानी मुहैया करने का वादा किया है, मगर कहाँ से, कैसे? उसने फरमाया है कि लोगों के आगे होकर चल और कौम के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले। जिस लाठी से तूने समुंदर पर मारा था
उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। तू चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा ताकि ये लोग पी। बहुत खुशी की बात है, खुदा की तमजीद हो, वो वफादार खुदा है। तो क्या मैं जाकर बुजुर्गों को बताऊं? जरूर जरूर, इन्हें कहना कि जल्दी चले। पेशतर इसके के लोग लश्करगाह से निकले, हमें चल देना चाहिए। मैं कादरे मुतलिक खुदा के नाम से इस चट्टान पर मारता हूँ। खुदावंद की तारीफ हो, पानी ही पानी। बहुत सारे लोगों के लिए है, हमको नहीं है, हम सब पी सकते हैं, फिर भी यहाँ तक नहीं होगा। आइए भाई मूसा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैं तो कोहे सीना पर खुदावंद से मिलने गया हुआ था, अभी आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप वहां गए हुए थे? मैं तो हर जगह आपको ढूंढता रहा, किसी को खबर ही ना थी कि आप कहाँ हैं। लेकिन हाँ भाई हारून, बहुत ही अहम बात है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये बात तो सारी कौम को बतानी चाहिए। यानी खुदा का ये पैगाम हर एक के लिए है? हाँ, खुदा ने फरमाया है कि सब लोगों को ये बता दो कि तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों के साथ क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। सब कौमों में से खुदा की खास मलकियत, मुकद्दस कौम। अगर हम उसके अहद पर कायम रहें, हमने तो अभी महसूस किया है कि हम गुलाम नहीं रहे। सुना हमने ड्रामा चिरागे राह। अगर हम माजी में किए गए खुदा के बड़े और अजीब कामों को याद रखें तो हमारे लिए आसान होता है खुदा के साथ वफादार रहना और मुश्किल हालात में भी अपने ईमान पर साबित कदमी से कायम रहना। आइए सामईन, अभी प्रोग्राम में सुनते हैं सिलसिला आईना, जिसमें सस्ता और महंगाई दोनों एक दूसरे से खूब नोकझोंक कर रहे हैं और एक दूसरे को गलत और खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए फिर इन दोनों की गुफ्तगू को सुनते हैं और इससे लुत्फानंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? हेलो मिस्टर सस्ता, लगता है आजकल तुम तो बड़ी अच्छी तरह सस्ता रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी तरह कोई बेचैन किस्म की चीज नहीं हूँ महंगाई। मैं हर काम इत्मीनान से करने का आदी हूँ। आदी? भाई, आदी का लफ्ज तुम्हारी जैसी आधी शख्सियत के साथ कुछ अच्छा नहीं लगता। जुम्मे के जुम्मे शक्ल दिखाने वालों को क्या पता आदी किसे कहते हैं। देखो बीबी महंगाई, जरा मुंह संभाल कर बात करो। ये मुंह और मसूर की दाल। सस्ता जी, अपनी औकात देखी है तुमने? आज तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाने आ गई हो। कभी लोगों की गुजर औकात का भी सोचा है तुमने? तुम्हारी वजह से लोग अब मसूर की दाल खरीदने के काबिल नहीं रहे। तुम्हें बड़ा तरस आता है लोगों पर। तुम तो अपने नाम की तरह बातें भी सस्ती करते हो। चलो शुक्र है महंगाई, तुम्हें मेरी बातों की हद तक सही कोई चीज सस्ती तो नजर आई। ज्यादा शेखियां बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी बातें इसलिए सस्ती लगती हैं कि मैं आजकल आसमान से बातें करती हूँ। तुम भला की मुनाफिक हो महंगाई। बातें आसमान से करती हो और नुकसान अहले जमीन को पहुंचाती हो। मैं तुम्हारी तरह बेबस नहीं हूँ सस्ते। जिस चीज के साथ तुम्हारा नाम आ जाए
लोग उसे शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। मुझ पर शक का इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारी वजह से सफेद पुश तबका जिंदगी से बेजार दिखाई देता है। मुझे तो सिर्फ बाजार से गर्ज है, किसी बेजार से मेरा क्या वास्ता। कोई मरे चाहे जिए, मैं तो अपना काम करती रहूंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम न सिर्फ अपना काम कर रही हो बल्कि गरीबों का काम तमाम कर रही हो। तुम्हें बड़ा तरस आता है गरीबों पर सस्ते मियाँ। तरस खा खा कर तुम्हारी तो अपनी हालत काबिल तरस हो चुकी है। तुम बड़ी जालिम हो। तुमने तिजारत में मुनाफाखोरी, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोजी जैसी बुराइयों को शामिल करके इसे बदनाम कर दिया। मुझे पता था कि तुम ये तमाम घटिया इल्जाम मुझ पर लगाओगे, लेकिन ताजरों के दिल में भी झांक कर देखो, तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। दूध का दूध? भी महंगाई, किस दूध की बात कर रही हो? आज तुम्हारी वजह से लोग जिसे खरीदने से पहले कई बार अपनी जेब में झांकते। सस्ते, तुम्हारा लहजा काफी गुस्ताखाना होता जा रहा है। तुम मुझे कोसने की बजाय अपनी बेबसी का मातम क्यों नहीं करते? मैं बेबस नहीं हूँ महंगाई। आज भी हर मार्केट और हर शॉपिंग प्लाजा में पूरी आबोताब के साथ मौजूद हूँ। हाँ, नाम की हद तक तो मैंने भी देखा है तुम्हें। अक्सर दुकानों पर यह भी लिखा होता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तुम सही कह रही हो महंगाई। मेरे चाहने वाले तुम्हारे दाम में आने वालों से भी फिर भी बेहतर है। तुम जिस पर वार करती हो वो दूसरा सांस लेने के काबिल नहीं रहता। अरे जो जिंदा ही नहीं रहेगा वो रोएगा क्या? हटो मेरे रास्ते से सस्ते। मेरे पास तुम्हारी सतही और सस्ती बातें सुनने का वक्त नहीं है, ना ही मैं तुम जैसों के मुंह लगना पसंद करती हूँ। मैं जानता हूँ आसमान से बातें करने वाली महंगाई को मेरी बातें कहाँ अच्छी लगेंगी। देखो सस्ते, अब तुम आउट ऑफ फैशन हो चुके हो। तुम्हारे लिए बड़ी मार्केटों में कोई जगह नहीं। आज तुम सेल के नाम पर दुकानों से बाहर पड़े दिखाई देते हो। तुम अपनी चंद सालों के दौरान बढ़ती हुई ताकत पर गुरूर मत करो महंगाई। लोग आज भी मुझे जहन में रखकर बाजारों का रुख करते हैं। लेकिन सद अफसोस, तुम्हें अपनी सोचों में पनाह देने वाले मेरी चमक से अपनी जेबें खाली करवा कर लौट जाते हैं। ये तुम्हारी खुशफहमी है महंगाई। मैं अब भी क्लियरेंस सेल में मिल जाता हूँ। ये खुद फरेबी है मिस्टर सस्ते। अब जुमा बाजारों, अतवार बाजारों, सेलों और फेयर प्राइस शॉप्स पर मेरी हुक्मरानी है। मुनाफाखोरों की मदद से मैं तमाम बाजारों को लपेट में ले चुकी हूँ। और हाँ, अब मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सिलसिला आईना भी बहुत ही खूब रहा और हमने सस्ता और महंगाई की नोकझोंक को खूब एंजॉय किया। तो सामईन, आइए अभी अगले सिलसिले की जानिब बढ़ते हैं जो हमारे इस मूड को और ज्यादा खुशगवार कर देगा। आइए मिलकर सुनते हैं आज का मौसीकी का खूबसूरत सा ट्रैक। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। सुना हमने मौसीकी का ट्रैक। तो आइए सामईन अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदाए अजीम बुजुर्गों बरतर, हम आपकी मोहब्बत और वफादारी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपसे इल्तिजा करते हैं हमें तौफीक बख्श दीजिए कि हमारे रवैये से, हमारी गुफ्तगू से हमेशा दूसरों को बरकत मिले और खुदावन हमारे सारे रवैये से सारी इज्जत और जलाल आपके नाम को मिले। तमाम तर सामईन के लिए, इनके घरानों और खानदानों के लिए आपसे बरकत की दुआ करते हैं। इनकी तमाम तर मुश्किलात को दूर कर दीजिए और भलाई के तमाम तर कामों में जहाँ कहीं ताखीर है उसे दूर कर दीजिए। अपने कवी, कादिर और कदूस हाथ को अपने लोगों के ऊपर हमेशा बढ़ाए रखिए ताकि हम सब आपकी पहचान में गहरे तौर पर बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हमारी इस इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।